Set number 5 questions for OUT 2025. First question: which one of the following is an example of non-renewable resources? Okay, so the answer is coal and minerals. Okay, yes, coal and minerals. Which of the following is a renewable resources? So the answer is soil, yes, water, yes, flora and fauna. All of the above is the right answer. Dash of stratosphere provide protection to our life. That's simple. That is the ozone layer. The life supporting gases such as O2, CO2 and N2 are chiefly concentrated in the answer should be troposphere. Okay. Which of the following soil is the best for plant growth? Okay, simple. That is loamy soil. Okay, so here is a sixth number question. Both power and manure are provided by. This would be sixth number C, I think. Yes, yes. Biogas plant. In the atmosphere, the layer above the troposphere is stratosphere, and dash is the major raw materials for biogas. This is cow dung. No. A biosphere reserve conserves and preserves all of the above is the right answer because wild animal includes wild land, natural vegetation, so all of the above. Atomic energy is obtained by using ores of um, only B. I think it is B. यूरानियम नॉट कॉपर. कॉपर नहीं यूज़ होता, यूरानियम यूज़ होता है. और दोनों मटेरियल दो और होते हैं ना, यूरानियम और एक याद नहीं आ रहा है. ठीक है, सुनो. 11th number question. Sanctuaries are established to it is protect the animals. The death of the last individual of a species is called uh, extinction. Okay. Which one of the following is not a fossil fuel? Fossil fuel, uranium, because petrol is the fossil fuel, coal, natural gas, these are fossil fuels, but uranium is not a fossil. Biogas generation is mainly based on the principle of dash. Um, this is 14th number fermentation. Okay, not degradation, not putrefaction, only fermentation. Red Data Book provides a list of what? Rare, endangered, and endemic species. This is the right answer. Floods can be prevented by uh, afforestation. Okay. नॉट कटिंग द ट्रीज, इससे तो नहीं होता. टिलिंग द लैंड, एकदम बेकार. रिमूविंग द टॉप सॉइल, इससे ज़्यादा ही फ्लड होगा. तो आंसर होगा पेड़ लगाने से, मतलब अफॉरेस्ट्रेशन. द थ्री टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज आर renewable, flow and non-renewable. Okay. The three R's are recycle, reuse and reduce. First answer. Sustainable development is dash. Sustainable development, gathering and processing resources without concern for the environment. Okay. Consuming resources at a rate that save plenty for future generation. Okay. And gathering and processing resources, then disposing them without damage to the environment. Okay. And ऑप्शन नंबर डी बोथ बी एंड सी. सी तो आंसर लग रहा है, बी और ए के थोड़ा देख लेते हैं. बी क्या लिखा है? कंज्यूमिंग रिसोर्सेज एट रेट दैट सेव प्लेंटी फॉर फ्यूचर जनरेशन. हाँ, ये तो सही है. फर्स्ट वाला गैदरिंग एंड प्रोसेसिंग रिसोर्सेज विदाउट कंसर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट. नहीं 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 नहीं, विदाउट कंसर्निंग कैसे होता है? नहीं होता है ना ऐसा. ऐसा होने से तो एनवायरनमेंट को खेती पहुंचेगा. तो विथ कंसर्न के साथ यूज़ होना चाहिए. ठीक है, गैदरिंग हो या उसका प्रोसेसिंग हो, एक कंसर्न के साथ यूज़ होना चाहिए एनवायरनमेंट में. विदाउट कंसर्न नहीं हो सकता, तो ये आंसर ही नहीं होगा. तो ऑप्शन नंबर डी
That is both B and C is the right answer. Example of renewable resources include renewable resources, आई थिंक 20 नंबर का बी होगा, फ्रेश वाटर, फॉरेस्ट एंड फिश, बार बार इसको यूज किया जा सकता है. फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म फ्रॉम वॉस, yes, yes. 21C, because once living organism that have decomposed over a very long time, then it can formed to fossils, I mean fossil fuels. A federal trade agreement that reduces or eliminates the tariffs on imports of certain agricultural products that are also produced in the United States is most likely to have which of the following effects? हाँ, the by 22 नंबर का सी ही होगा, बिकॉज लोअरिंग द प्रॉफिट ऑफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर का प्रॉफिट लोअरिंग कर देना. ठीक है. Which of the following statement best summarize the general policy regarding water right for streams and aquifers in Colorado? Okay, first option: all actual and potential users of water from a source have the right to equal amount. Okay, first users have priority to underground water sources, but all users have equal rights to surface sources. Okay, the first person to appropriate water from a source and put it to use has first right to the water. Okay, the user with the greatest need as determined by a water code and has first right to the water. So according to me, the appropriate answer should be C, because the first person to appropriate water from a source and put it to the has first right to the water. Okay, 23C. And 24th question. A mechanic performs a compression test on earth of the cylinder of a gasoline engine. The pressure in one cylinder is much lower than normal. So the mechanic places a little oil in that cylinder and repeats the test. This time the pressure reading is close to normal. So these results best support which of the following conclusion? That the cylinder head is cranked, the piston is not advancing fully into the cylinder, the intake or exhaust valve is stuck open, the cylinder or rings are excessively worn. अच्छा. सो 24th क्वेश्चन का आंसर डी होगा, बिकॉज द सिलेंडर और रिंग्स आर एक्सेस सिवियरली worn. A pump that supplies water to a sprinkler irrigation system has begun to operate at a reduced pressure. Okay, and it sometimes loses its prime despite an adequate water supply. Which of the following actions is most appropriate to taken in this situation? क्वेश्चन समझो क्या पूछा है. ए पम्प दैट सप्लाइज वाटर टू ए स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम हैज़ बिगन टू ऑपरेट एट ए रिड्यूस्ड प्रेशर. ओके, रिड्यूस्ड प्रेशर में ऑपरेट होने लगा है. एंड इट समटाइम्स लूजेस इट्स प्राइम. अच्छा, डिस्पाइट एन एडिक्वेट वाटर सप्लाई. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज मोस्ट अप्रोप्राइट टू टेक इन दिस सिचुएशन? Check the intake line for air leaks or replace the pump impellers. Check the outlet line for clogs, replace the pump motor. I think 25 नंबर ए होगा. चेक द इनटेक लाइन फॉर एयर लीक्स. एयर लीक कर रहा होगा वहाँ पर, बिकॉज प्रेशर रिड्यूस हो रहा है ना, तो एयर लीक हो रहा होगा. इसको चेक करना बनता है. कंट्रोल ऑफ which of the following pairs of factors is generally most critical in timing the bloom of a crop of flowering plants such as poinsettias to meet a marketing target date. अच्छा. सो 20 देखो, इसका ऑप्शन देख लो सारे. ह्यूमिडिटी एंड एयर सर्कुलेशन, नहीं, ये नहीं हो सकता. ग्रोइंग मीडियम कंपोजिशन एंड वाटरिंग फ्रीक्वेंसी, नहीं. लाइट एंड टेम्परेचर, yes. दिस वुड बी द राइट आंसर. फर्टिलाइजर कॉन्सेंट्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एप्लीकेशन, नहीं, ये भी नहीं. तो आंसर नंबर सी होगा, लाइट एंड टेम्परेचर.
Control of which of the following pairs of factor generally most critical in timing the bloom of a crop flowering plant, such as poinsettias, to meet a marketing target date. So light and temperature is most critical. So 27, the most significant current threat to rainbow trout pollution in Colorado is posed by option environmental pollutant, no. Competition from other fish species, no. Reduced stream flow, नहीं. Whirling disease, right. So 27th नंबर का डी हो गया. 28th क्वेश्चन देखो. Which of the following is the primary reason why operation that produce feeder pigs or calves often use cross breeding rather than pure breeding? अच्छा, cross breeding generally is less expensive and labor intensive than pure breeding. Cross breeds offspring generally are more easy to handle and manage than pure bred offspring. Cross breeding generally results in more uniformity among offspring than pure bred. Crossbred offspring generally are more vigorous and productive than purebred offspring. Yes, absolutely. D. These are generally are more vigorous and productive than purebred. 29th. Which of the following practices is used to prevent the introduction of disease into a swine confinement building? Okay. So recirculating the air from the building to prevent pathogens from entering with outside air, fumigating the building on a regular basis, requiring people to dip their shoes in a disinfectant solution prior to entering the building, treating the water used in the waterers with the chlorine. 29th, I think C, because requiring people to dip their shoes in a disinfectant solution prior to entering the building. Both say. 30. Which of the following factor is most important to consider when determining the ideal time to harvest grain crops? Okay. So protein content, the height of the plant, the moisture content of the grain, the grain size. कौन से फैक्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है टू डिटरमाइन द आइडियल टाइम टू हार्वेस्ट ग्रेन क्रॉप्स? ओके, सो उसका मॉइस्चर कंटेंट ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पाया जाता है ग्रेन्स में. अगर मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो तो अच्छे से वो ग्रो करता है, हार्वेस्ट करने पर अच्छे से ग्रो करता है. अगर मॉइस्चर कंटेंट कम हो तो उसको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा. ठीक है. 31th number question. A soil with which of the following composition will have the highest water holding capacity? Okay. So 75% sand, 25% silt. नहीं, ऐसे तो नहीं होगा. सैंड 75% बिल्कुल नहीं भाई. 50% सैंड, 25% सिल्ट, क्ले 25% नहीं. जो देखो ना, अगर तुमको सोइल का कंपोजिशन चाहिए वो भी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा, सो सैंड का परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए. ठीक है. तो ये तो नहीं होगा. बी ऑप्शन भी नहीं होगा. 75% silt and 25% clay. Yes, that would be right. 50% sand and 50% silt नहीं. सैंड का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कमज़ोर है. ठीक है. सो ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर. 32. A primary goal of both the FFA and the National Young Farmer Educational Association NYFEA is to what? Lobby for changes in public policy related to agriculture education, या encourage innovation and risk taking by members, improve working condition and pay in the agriculture industry, or develop the leadership skills among members. तो क्या आंसर होगा बताओ.
सोचो सोचो, तुम सोचो और आंसर बताओ क्या होगा। तो आंसर नंबर डी होगा, डेवलप लीडरशिप स्किल्स एमंग मेंबर्स। मेंबर के बीच में अगर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी और स्किल्स डेवलप किया जाए सो अच्छा हो सकता है। मतलब प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए, एफएफए और एनवाईएफईए के अंदर प्राइमरी गोल क्या होना चाहिए कि लीडरशिप स्किल्स उनके मेंबर में बढ़े। तो ये आंसर डी होगा। ओके, 33, जॉन इज ऑपरेटिंग ए लॉन केयर बिजनेस as part of a supervised agricultural experience program. Okay, as part of his record keeping system, he records every financial transaction in a journal. The next step in his system should be to periodically transform this information to what? General ledger, financial statement, monthly budget, cash flow summary. भाई देखो, सी और डी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन बचे जनरल लीडर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा देखो, मंथली बजट और कैश बजट ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी आए ना, तो ये भी कैंसिल होगा। तो आंसर नंबर ए होगा, एक सेकेंड, जनरल लीडर। ठीक है। ओके, 34, डैश एंड डैश आर कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। सो देखो इसका आंसर क्या होना चाहिए, फोडर क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स ये होना चाहिए कि फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, या ट्रीज, ग्रासेस, या फूड क्रॉप्स, ट्री क्रॉप। यस, फूड क्रॉप एंड टी क्रॉप इज द राइट आंसर। 35 नंबर क्वेश्चन, ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज डैश। नॉन रिन्यूएबल जब पुनः व्यवहार मतलब फिर से यूज नहीं किया जा सकता, और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा बताओ। फॉसिल फ्यूल्स, जितने बार इसको यूज़ करोगे भाई ख़त्म होता जाएगा, और उसको यूज़ करना नामुमकिन है, फिर से यूज़ करना नामुमकिन है, बिकॉज फॉसिल फ्यूल्स को बनने में बहुत समय लगता है। हज़ार 1 लाख ईयर तो लग ही जाता है फॉसिल फ्यूल्स को बनने में। ठीक है। ए प्लांट एंडेमिक टू इंडिया इज डैश। आप सबको बताइए क्या आंसर होगा, ये बानियन ट्री होगा। ठीक है, एंडेमिक टू इंडिया, तो 36 नंबर का ए। A recent technique for the study of vegetation is what? वेजिटेशन के लिए फील्ड वर्क होना चाहिए। फील्ड वर्क, या ये भी सोच सकते हो कि रिमोट सेंसिंग एक नया टेक्निक है, तो ये ही यूज हो सकता है कि रिमोट सेंसिंग, यही आंसर होगा। फील्ड वर्क तो पहले यूज होता था, तो ये रिसेंट टाइम में पूछा है ना, तो रिमोट सेंसिंग। ग्राउंड टॉप फोटोग्राफी नहीं, ऑब्जर्वेशन, ये क्या है, ये तो बेकार। ऑब्जर्वेशन से क्या करोगे, तो रिमोट सेंसिंग करना पड़ता है। ये रिन्यूएबल एग्जॉस्टिव नेचुरल रिसोर्सेज क्या है, सबको बताया भाई, ये फॉरेस्ट है। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज, तो डेट इज फॉरेस्ट। ओके, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू ए गिवन एरिया इज व्हाट? एंडेमिक स्पीसीज, या एलोपैट्रिक, या सिम्पैट्रिक सिबलिंग स्पीसीज। Restricted to a certain area, so that is endemic species. Okay, so 40th नंबर क्वेश्चन को, अरे यार चलते हैं। ठीक है, देखो, अकॉर्डिंग टू IUCN, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ रेड पांडा। रेड पांडा किस कैटेगरी में आएगा? क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज, वुल्नरेबल स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज। आई थिंक इट इज़ अंडर एंडेंजर्ड स्पीसीज, बिकॉज डेंजर के हालात में है। ठीक है, रेड पांडा विलुप्त होने के कगार पर है। एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री बोथ इंक्लूड्स व्हाट? आई थिंक इट इज़ 41 सी दिख रहा है, सी या डी, दोनों में कोई तो आंसर का। प्रोडक्शन फॉरेस्ट्री नहीं, कमर्शियल नहीं, अफॉरेस्ट्रेशन या प्लांटेशन ऑफ ट्री। देखो, एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है, एग्रीकल्चरल फॉरेस्ट्री बोलते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री सेम बात हुआ, तो ट्री का प्लांटेशन में जाएगा। ठीक है, सो 41 का डी आंसर होगा। हाँ, फॉरेस्टेशन में वो भी वही कैटेगरी में आता है, बट प्लांटेशन ऑफ ट्रीज मोस्ट एक्यूरेट आंसर होगा इसका।
An endangered bird is what? Passenger pigeon, pink-headed duck, great Indian bustard, vulture. हो गया ना आंसर, great Indian bustard. Okay, 43. An endangered species from the following: आजादी राक्टा या रोजा इंडिका, राउलोफिया सर्पेंटिना और आकाशिया अराबिका. कौन एंडेंजर्ड स्पीसीज कौन होगा बताओ? रोजा इंडिका बिल्कुल नहीं, राउलोफिया सर्पेंटाइना हाँ ये हो सकता है, ये इतना भी देखा नहीं जाता राउलोफिया सर्पेंटिना, तो आंसर नंबर सी होगा. ठीक है. एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेटिव कंजर्वेशन, इंसिटू एक्सेटिव याद होना चाहिए सबको. ये एक्सेटिव कंजर्वेशन क्या होता है, उसका एग्जाम्पल सीड बैंक. ठीक है. एन एग्जॉस्टिबल रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या होगा? फ्रेश वाटर. ठीक है. रिन्यूएबल बार बार यूज किया जा सकता है, बट एग्जॉस्टिबल बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं. एन इन एग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता बट रिन्यूएबल हो सकता है, इसको फिर से यूज कर सकते हैं. तो सिंपल भाई. हाइड्रो पावर कितने बार यूज़ होता है हाइड्रो पावर? एंथ्रोपोजेनिक एक्सटेंशन ऑकर्स ड्यू टू व्हाट? चेंजिंग एनवायरनमेंट. सिंपल. बट एक सेकेंड, यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी है. एनवायरनमेंट में चेंज हो जाए तो भी नेचुरल सिस्टम है वो बचा लेता है, इतना भी एक्सटेंशन नहीं होते हैं. बट ह्यूमन एक्टिविटी को देखो, यही आंसर होगा. ऑप्शन नंबर डी ही आंसर होगा. कुछ गलत सलत कर देते हैं ह्यूमंस और देखो उनके वजह से एक्सटेंशन हो जाते हैं. बायोगैस इज which टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज? सो यस, इट इज रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल. तो 48 डी, renewable and non-conventional. Chipko movement is an example of forest conservation through what? Sorry, Tehri Gharwal district, Uttaranchal, public awareness and participation, political issue. ये तो नहीं होगा. 49 का डी बिल्कुल नहीं. पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन इज द राइट आंसर. उत्तरांचल नहीं, तेहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट भी नहीं, ये पब्लिक अवेयरनेस एंड पार्टिसिपेशन का कारण है. चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड टू व्हाट? सिंपल भाई. 50 का आंसर क्या होगा? बताओ 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 जल्दी बताओ. यस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ना कि सॉइल नहीं, वाटर नहीं, वेटलैंड कंजर्वेशन नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन. बिकॉज 49 का क्वेश्चन में पढ़े थे हम, फॉरेस्ट कंजर्वेशन लिखा था. ठीक है. ओके. 51 चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च्ड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ, अरे कितने बार वो सवाल पूछेगा यार. फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज एंड इट्स नेचुरल हैबिट. सिंपल है भाई. एच का नंबर क्या होगा? बताओ बताओ. इन सिटू कंजर्वेशन. डिफोरेस्टेशन ब्रिंग्स अबाउट सोइल इरोजन होगा. वीड कंट्रोल नहीं होगा. डिक्रीज ड्रॉट बढ़ेगा, ये भी नहीं होगा. इंक्रीज टू सनलाइट बढ़ेगा भाई. कैसे इंक्रीज हो जाएगा? सॉरी घटेगा, कैसे इंक्रीज होगा? तो आंसर नंबर क्या होगा? सोइल इरोजन. डिफोरेस्टेशन इज कॉज ड्यू टू व्हाट? ये सिंपल है भाई. किससे होता है बता? प्लांटेशन ऑफ ट्री से होता है? नहीं, इससे तो डिफोरेस्टेशन कम होता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, हाँ ये एक आंसर हो सकता है. और सिल्वीकल्चर नहीं, ये तो नहीं. रेनफॉल से थोड़ी ना डिफोरेस्टेशन होता है भाई. कंजर्वेशन ऑफ रोड आंसर होगा. Deforestation is the major causal agent of what? Depletion of natural resources. Okay. एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, हाँ ये हो सकता है. जो डेजर्टिफिकेशन ऑफ हैबिटेट, हाँ ये भी हो सकता है. सो जेनेटिक एरोजन, हाँ ये भी हो सकता है भाई. मोस्ट अप्रोप्राइट एक्यूरेट आंसर बताओ. एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो वैसे भी हो रहा है, डिफोरेस्टेशन का बात मत पूछो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन तो वैसे भी हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण. पर डिजर्टिफिकेशन ऑफ हैबिट, यस, अगर तुम पेड़ को काट दोगे उसके जगह पर अगर कुछ रहेगा नहीं तो कुछ साल बाद वो जगह कोई काम का रहेगा ही नहीं, डिजर्टिफिकेशन हो जाएगा. डिफोरेस्टेशन विल डिक्रीज व्हाट? सिंपल है, सोयल एरोजन को रोकेगा. और क्या? या रेनफॉल को रोकेगा, या लैंडस्लाइड, या सॉइल फर्टिलिटी. क्या आंसर होगा बताओ?
सोच के बताओ। डिफॉरेस्ट्रेशन क्या डिक्रीज करेगा, क्या डिक्रीज करेगा? रेनफॉल को डिक्रीज करेगा। क्यों बता है? ट्रीज होते हैं किस लिए? वो बारिश कराते हैं। ट्री बारिश कराने में उनका बहुत बड़ा भूमिका होता है। अगर तुम ट्री को ही काट दोगे, डिफॉरेस्ट्रेशन कर दोगे, रेनफॉल ही कम हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ बोटनिकल गार्डन इज व्हाट टाइप ऑफ कंजर्वेशन? अगर बोटनिकल गार्डन को डेवलपमेंट करना है तो एक किस टाइप का कंजर्वेशन होगा? एक्स-टू कंजर्वेशन। एक्स-टू कंजर्वेशन इज कैरिड आउट इन व्हाट? जू। सिंपल। Extensive planting of trees to increase forest cover is called what? हाँ, सिंपल सिंपल भाई, अफोरेस्ट्रेशन। अगर तुम पेड़ों को प्लांटेशन ऑफ ट्री करोगे अफोरेस्ट्रेशन, डी प्लांटेशन ऑफ ट्री करोगे तो डिफोरेस्ट्रेशन। तो आंसर नंबर क्या होगा? अफोरेस्ट्रेशन। फॉर मैपिंग रिमोट सेंडिंग इक्विपमेंट इज माउंटेड ऑन एयरक्राफ्ट सैटेलाइट। हाँ, यही आंसर होगा। मैपिंग करना है ना, सीव स्पेस क्राफ्ट नहीं, सैटेलाइट स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आ गया? ऑल ऑफ द बिल्कुल नहीं। आंसर नंबर ए होगा। फॉरेस्ट कंट्रोल ड्रॉट बाय व्हाट? बताओ, ऑप्शन पढ़ो, चारों ऑप्शन बताओ क्या आंसर होगा। मैं नहीं बताना वाला हूँ, कमेंट कर देना आंसर क्या होगा। फॉरेस्ट कंट्रोल ड्रॉट बाय व्हाट? प्रिवेंटिंग सोल एरोजन, या इंक्रीजिंग ऑक्सीजन, या इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, या प्रिवेंटिंग फ्लड्स? चलो मैं बता ही देता हूँ, इंक्रीजिंग ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। ओके, तो फ्रेश वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ में, ये तो बता सकते हो ना, बहुत सिंपल आंसर होगा इसका बताना। ठीक है, कमेंट कर देना आंसर। 63. फ्रेश वाटर प्रॉब्लम arises due to what? ग्लोबल अवेलेबल स्टॉक्स आर इनसफिशिएंट, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, ये तो नहीं होगा। एंड नो रिजनरेशन ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी थ्रू द नेचुरल हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। आंसर क्या होगा? ये भी तुमको कमेंट करना पड़ेगा क्या आंसर होगा। एक सेकंड एक सेकंड, आइदर आंसर बी हो सकता है रे, मैंने सोचा नहीं था। ऑल इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, अगर अर्थ का इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता तो फ्रेश वाटर सब जगह पाया जाता ना। हाँ, ये आंसर बी होगा रे, ऑन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ। यस यस यस, सॉरी गलती से उसको गलत ठहरा दिया था। आंसर नंबर बी होगा। ठीक है। गामा एंड एक्सरेज आर नॉट यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग बिकॉज व्हाट? बिकॉज दे आर ऑब्जर्व्ड बाय द लेयर एटमोसफियर। लेयर एटमोसफियर में ऑब्जर्व हो जाते हैं, इसलिए उसको रिमोट सेंसिंग एरिया में यूज़ किया नहीं जाता है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आर डैश? फेमस क्वेश्चन, बताओ आंसर क्या होगा। रोटेट विथ स्पीड इक्वल टू दैट ऑफ अर्थ। इट्स अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अर्थ के सहित अर्थ का जो स्पीड, जितना स्पीड में वो रिवॉल्व करता है उतना स्पीड में ही जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व होते हैं। ह्यूमन डोमिनेटेड बायोस्फीयर इज कॉल्ड व्हाट? इट इज कॉल्ड, एक सेकेंड, ट्रोपोस्फियर, स्ट्राटोस्फियर, हेमिस्फियर और नूस्फियर। नूस्फियर, अरे बच्चों नूस्फियर क्या होता है रे? मुझे नहीं मालूम। ह्यूमन डोमिनेटेड अच्छा एक सेकेंड, ह्यूमन किस बायोस्फीयर में डोमिनेटेड करता है? ट्रोपोस्फियर में ना। हाँ, ये आंसर होगा। न्यूस्फियर में नया सुन रहा हूँ, क्या है? ओके, 67 देखो, इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड टू डैश? फ्लोरा एंड फना। ओके, फोना ओनली फ्लोरा ओनली नहीं भाई, दोनों को प्रोटेक्शन मिलता है। इन इंडिया कॉमन टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज व्हाट? ट्रॉपिकल डेसिडुअस, नहीं 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 नहीं, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस। एक सेकंड, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट आंसर होगा। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये रहा हमारा 68th क्वेश्चन। ठीक, कितना रहा? 68th क्वेश्चन। ओके बच्चों लोग, अगर तुमको ये समझ में आया, अच्छा लगता है ऐसा क्वेश्चन करने में, तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, और भी ज़्यादा लाऊंगा प्रैक्टिस करने के लिए। एग्ज़ाम 20 दिन के बाद ही एग्ज़ाम है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। ओके, 68 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू।
चलिए 30 ये